Now we are discussing is a theory of panspermia, or it can be also called as cosmozoic theory. Cosmozoic theory. Now, what this theory states? This theory states life exists on other planets, or it was existing previously on other planets. Then it transferred, it get descended from what? From other planets to the Earth. So these microorganisms which come from the other planets, they come through the cosmets, isn't it? Comets, or with the help of meteorites. They come down onto the Earth, and they were on the Earth. They were present inside the water and developed into the complex organisms. तो कहते क्या है, मैं फिर एक बार रिपीट करूं, थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया बोल रहे हैं, स्पोर्स हम बोल रहे हैं, वो क्या होगा कि जो बाकी प्लैनेट्स हैं उन पे लाइफ पहले से एग्जिस्ट हो रही थी. अब उन्हीं प्लेनेट से जो लाइफ है वो डिसेंड होगी ऑन टू द अर्थ, अर्थ के ऊपर. और कैसे होगी कि स्पोर्स आ गए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थ्रू कमेट्स या थ्रू मेटोराइट्स के थ्रू वो क्या आ गए अर्थ के ऊपर. फिर वाटर के अंदर उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट हो गए फ्रॉम सिंपल टू द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. और ये थ्योरी किसी टाइम तक एक्सेप्ट भी हुई. दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम थ्योरी के लिए एक्सेप्टेड हो गई. लेकिन फिर लिमिटेशन क्या थी इस थ्योरी की? लिमिटेशन ये थी, अगर कोई भी चीज एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट से आ जाए, और अगर आप बीच में देखोगे ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा होस्टाइल इन्वायरमेंट है which it have to cross first. That means it have to cross this environment while there with the friction. अगर फ्रिक्शन हो सकती है तो फ्रिक्शन वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये स्पोर जो है पहले से क्या करे हो जाएगा, जल जाएगा. Isn't it? So it's not easy for a spore or for a microorganism to move from one planet to the another planet. This becomes a limitation, and then after this theory was rejected. तो हम क्या लिख सकते हैं? According to this theory, life exists previously on other planets and was descended on Earth and were descended on Earth. उसके बाद ये लाइफ जो है वो डिसेंड कर दी, ट्रांसफर कर दी किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. द स्पोर्स ओब्लिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप लिख सकते हो. ऑर्गेनिजम्स move through meteorites or comets onto the Earth. On Earth, these organisms lived in water and finally changed into complex organisms. और फाइनली चेंज हो गए किसमें? ये बता रही. तो ये थ्योरी क्या बता रही है? ये थ्योरी हमें बता रही है लाइफ जो है वो पहले से एग्जिस्ट हो रही है किसके ऊपर? अदर प्लैनेट्स के अंदर. उसके बाद ये डिसेंट हो गया ऑन टू द अर्थ, और स्पोर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव थ्रू कर गए मीटोराइट्स और कमेट्स ऑन टू द अर्थ. ऑन अर्थ दीज ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन वाटर, ये पानी के अंदर है, और फाइनली चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. ये हमें कॉस्मिक थ्योरी बता रही है. लेकिन एक चीज आप याद रखोगे, इस कॉस्मिक थ्योरी के लिमिटेशंस. क्या ये पॉसिबल है कि एक स्पोर या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेनेट टू अनदर? इज इट पॉसिबल to cross this hostile environment? No, it's not possible.
Because whenever the organism will move from one planet to another planet, the molecules inside the environment will strike. There will be the friction. And due to the friction, what will happen? This microorganism or this spore will not survive, isn't it? So हम ये बोलेंगे, it's not possible. It is not possible for microorganism oblique spore to move from one planet to another. Okay? Reason क्या होगा? Due to friction. Due to friction inside the environment, the spores or organism do not survive. Spores, oblique microorganism do not survive. ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये पॉइंट आप याद रखोगे। मगर एक चीज आप और इसमें ऐड कर दोगे, दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम. This theory was accepted for long time, then rejected. Why? After that, it was find out that it is not possible that an organism or a spore can move from one planet to another planet. It's not possible, because in a hostile environment there is a friction, and due to the friction, what will happen? The spore or the microorganism will not survive, isn't it? So it is not possible. This was which theory? Theory of panspermia, or theory of yeah, we can call it as a cosmozoic theory. Okay. So this was also rejected because of its limitation. Okay. Then move forward with the most important theory, that is a theory of chemical evolution, or this is also called as modern theory regarding origin of life. This is a well accepted theory. ये हो गया, आप लोगों ने लिखा इसको. चलो आगे चलते फिर. Limitation ये है, it is not possible for microorganism or a spore to move from one planet to another. Reason? Due to friction inside the environment, spore or do not survive. ये survive नहीं कर पाएंगे environment. अब जो theory हम पढ़ने वाले, ये सबसे important theory है, और ये theory जो है आपको अब आगे जाके जो है accept करने वाली theory है, ठीक है ना? Well accepted theory. करो मैं इसको रख. Now the well accepted theory which we have is a theory of chemical evolution. Theory of chemical evolution. What we are studying actually, origin of life or origin of cell, isn't it? And later on we study origin of species. और theory of chemical evolution, या इसको आप बोल भी सकते हो modern theory. What you can call it as? या आप इसको बोल भी सकते हो chemical theory of evolution. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? या modern theory of evolution भी आप इसको बोल सकते हो. Modern theory of evolution भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है बेटा? अब ये theory किसने दी थी? पहला पॉइंट आप लिखोगे. This theory was given by Oparin and Haldane. या Haldane. This was given by Oparin and Haldane. 1920s में इसको उन्होंने ये थ्योरी को दिया था. किसने? Oparin and Haldane. ये दो साइंटिस्ट जिनने इस थ्योरी को दिया था. लेकिन आप याद रखोगे जो Oparin है वो यहाँ पे कौन सा साइंटिस्ट? इंग्लैंड का साइंटिस्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन में पूछा गया था Oparin belongs to which country? इज इंग्लैंड. और इसमें जो हैलेडेन है वो कहाँ का है? वो रशिया का है. वो रशिया का है, ठीक है बेटा? दोनों साइंटिस्ट जो है काम कर रहे हैं किसके ऊपर? केमिकल थ्योरी के ऊपर.
अब केमिकल थ्योरी हमें बताती क्या है, पहले ये चीज़ मैं क्लियर करूँ, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे, हम इसका वर्क देखेंगे, इन दो का वर्क क्या था, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसका ये क्या बता रही है हमें ये थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लाइफ इज ऑरिजिनेटेड, या लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होती है, लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ए नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से क्या होगी, लाइफ ऑरिजिनेट होगी। और ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉर्म हो गए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। देखो कहानी क्या है, पहले हम ये बोलेंगे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, फिर वो चेंज हो गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से क्या होगी, लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होगी। लेकिन अभी भी कह रहा है जो एनवायरमेंट अर्थ का था, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो एनवायरमेंट जो कहाँ का था अर्थ का, वो रिड्यूस्ड टाइप ऑफ एनवायरमेंट था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं मिल रहा था, एक चीज। और टेम्परेचर अर्थ का अभी भी 800 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, और अभी भी वॉल्केनिक स्टॉर्म जो थे अर्थ के ऊपर अवेलेबल थे। ठीक है ना बेटा, तो हम लिखेंगे इस पॉइंट को पहले। अकॉर्डिंग टू ओपेरन एंड हेल्डेन, लाइफ originated from non-living organic molecules। अब आप बोलोगे सर स्पॉन्टेनियस थ्योरी तो ये भी बोल रही थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो ये बोल रही था, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पॉन्टेनियसली वर्ड लिखा नहीं, यहाँ पे एवोल्यूशन टाइम लग गया। Life originate from non-living organic molecules, and these non-living organic molecules arise from inorganic मॉलिक्यूल्स। और ये कहां से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहां से वजूद में आ गए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वजूद में आ गए। तो मैंने क्या बताया, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि अगर हम बोल रहे हैं कि लाइफ कहां पे एग्जिस्ट हो रही है, लाइफ हो रही है ऑर्गेनिक, तो हमारे पास पहले क्या थे, इनऑर्गेनिक। ठीक है बेटा, फिर वो कन्वर्ट किस में हो गए, ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक भी वो कौन सी, नॉन लिविंग। ठीक है ना, और फिर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या दे रहे हैं, हमें लाइफ दे रहे हैं। असल में ये डेफिनेशन इन 3 पॉइंट्स में लिखनी है आपको। लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड दीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इजंट इट। वन मोर पॉइंट जो आप लिखना चाहोगे इस थ्योरी से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले, द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ was reduced। क्या था वो, रिड्यूस्ड था। हाई टेम्परेचर, उस पे हाई टेम्परेचर था, एंड वोल्केनिक स्टॉर्म्स, वहां पे क्या अभी भी हो रहे थे, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। ये चीज मैं बता रहा हूं कि हमें बताना है असल में लाइफ कैसे ऑरिजिनेट होगी। इसका मतलब लाइफ जब ऑरिजिनेट हो रही थी अर्थ के ऊपर, तो आप कहां से बन रही थी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, और वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहां से बन गए थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। लाइफ एग्जिस्ट हो रही थी, लेकिन एनवायरनमेंट अर्थ का क्या था, लाइफ जो यहाँ सेल जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन एनवायरनमेंट क्या था, एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ वाज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन अभी मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं था, हाई टेम्परेचर 800 डिग्री टेम्परेचर कहा जाता था वहां पे। इसका मतलब पानी जो है वेपर से वाटर से वेपर हो रहा था। ठीक है ना, और वोल्केनिक स्टॉर्म्स अभी भी अर्थ के ऊपर हो रहे थे। ठीक है बेटा, अब इस चीज को, इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक हम स्टोरी की तरह हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने देखी थी, और क्या क्या वो एजप्शन जो है वो कर रहे हैं, और कौन सा एक्सपेरिमेंट जो लास्ट पे हम देखेंगे, यूरी एंड विलर्स एक्सपेरिमेंट, जो हमें इस थ्योरी को प्रूव कर रहा है। ठीक है ना, चलो आगे चलते फिर। मैं इसको रब करूं। तो अगर हम इस थ्योरी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, तो इस थ्योरी की अगर हम बात करेंगे
तो हम ये बता रहे हैं कि अर्थ जो थी अभी भी मोल्टन थी, तो हम यही बोल सकते हैं अर्थ मोल्टन फॉर्म में थी। और अगर हम मोल्टन फॉर्म की बात करेंगे तो हम इस अर्थ को ले रहे हैं, और आप समझ लो अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप देखोगे, सरफेस के ऊपर जो हमें लास्ट में इन्वायरमेंट बनाते हैं, अर्थ के सरफेस अभी भी मोल्टन थी। तो अगर सरफेस मोल्टन थी, आप समझ लो ये सरफेस है अर्थ की, जो मैं डॉट बना रहा हूँ, आप समझ लो ये सरफेस थी, और ये सरफेस जो थी ये अभी मोल्टन थी, और यहाँ से जो है गैसेज जो है वो इवाल्व हो रहे थे। मैंने आपको बताया था कौन कौन सा गैस इवाल्व हो रहा है, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, isn't it? ये चीजें जो इवाल्व हो रही थी, इवन तो वाटर भी इवाल्व हो रहा था, ये चीजें मैंने बताई थी आपको। और इसके इनर साइड की अगर हम बात करेंगे, इनर साइड में जो हमारे पास चीजें थी उनका वो आप समझ लो ये जो यहाँ से बाहर से जो एवापोरेट हो रही थी, या हम बोलेंगे जो इवाल्व हो रही थी गैसेस टू द इन्वायरमेंट, ये लाइटर गैसेस थी, isn't it? और इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस साइड आप देखोगे, देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम मैग्नीशियम, आप समझ लो सेंटर में थोड़ा सा डीपर था, और उससे भी अगर आप थोड़ा सा डीपर जाओगे अर्थ के अंदर तो डीपर में आपको आयरन मिलेगा, बाकी चीजें जो है वो आपको मिलेगी। तो हम ये बोलेंगे जो जो हैवियर चीजें थी वो सेटल डाउन होगी इस मोल्टन फॉर्म में, और उन्होंने क्या किए, लेयर्स फॉर्म किए। जैसे हमारे पास जो सबसे ज्यादा हैवियर थे वो किस में आ गए, कोर में आ गए, isn't it? और उसके बाद जो उससे लाइटर थे वो कहाँ पे आ गए, मेंटल में आ गए, और उससे जो लाइटर थे वो कहाँ पे आ गए, क्रस्ट के ऊपर। लेकिन अभी भी जो अर्थ थी, अर्थ की जो सरफेस थी वो क्या थी, वो मोल्टन थी। तो अगर अर्थ की सरफेस मोल्टन थी तो हमने बोला यहाँ से कुछ गैसेज इवाल्व हो रही थी। अब कौन कौन सी गैसेज जो है इवाल्व हो रही थी, मैंने आपको बताया था CH4, मीथेन, NH3, अमोनिया, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, isn't it? और मैंने आपको बोला था H2O जो है वो इवाल्व हो इनटू द एनवायरनमेंट, और ये क्या क्रिएट कर रहे थे, एटमॉस्फेयर, isn't it? इन्होंने क्या क्रिएट किया बाद में, एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बोली थी ये चीजें। तो एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो गया इस तरह से इन गैसेस से। और जब रेन होगी, मैंने आपको बोला था कि हमने बोला कि ये गैसेस जो है ये क्रिएट कर रही थी किसको, एटमॉस्फेयर को। और फिर लेटर ऑन जब एटमॉस्फेयर बन गया, इन्हीं गैसेस की वजह से हमारे पास ओशंस आ गए, याद आ गया? और ओशंस की वजह से हमारे पास क्रिएट हो गया हाइड्रोस्फीयर। हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोस्फीयर भी क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देखोगे ये मेंटल क्रस्ट ये भी फॉर्म होने लगे। तो हमने बोला यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट यू कॉल दिस अर्थ्स व्हाट दीज लेयर, वी कैन कॉल दैट वन एज अ हमने बोला एटमॉस्फेयर, ओशन, एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर भी क्रिएट हो गया, isn't it? तो ये चीजें जो है वजूद में आ गई। अब देखो बेटा, मैंने आपको बोला ओशन वजूद में आ गया, इसका मतलब हाइड्रोस्फीयर वजूद में आ गया। अब ये गैस इज ड्यू टू द रेन, दे गेट एक्युमुलेट इनटू द ओशन इन अ डिसॉल्व्ड फॉर्म। ये गैसेज जो है कहाँ पे चलेगी, ओशन के अंदर। आप समझ लो हमारे पास ये ओशन है, मैं समझाऊंगा इन चीजों को आपको। आप समझ लो ये गैसेज जो है डिसॉल्व्ड फॉर्म में कहाँ पे चलेगी, ड्यू टू द रेन दे गेट एक्युमुलेट इनटू द ओशंस। अगर मैं इसको ओशन ले लूं, क्या ले लूं बेटा, ओशन, और ओशन के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं ये ओशन है, इसका टेम्परेचर क्या है, आप यू नो अबाउट इट, टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वेपर टू वाटर हो रहा है कंटिन्यूअसली, isn't it? 800 डिग्री इसका टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा। अब जो डिसॉल्व्ड गैस यहाँ पे चले गए, हमारे पास मीथेन था, हमारे पास अमोनिया था, हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। ये चीजें जो है यहाँ पे क्या होगी, चलेगी डिसॉल्व्ड फॉर्म, क्योंकि रेन होगी, एटमॉस्फेयर में गैस थी आगे, और कहाँ पे चलेगी, सेटल डाउन इनटू द वाटर। ठीक है ना? इनको हम बोलते हैं, वी कॉल दीस सब्सटेंसेस एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। व्हाट आर दे? These are the inorganic substance. उसके बाद क्या हो गया, due to high reaction or due to the high temperature, there was the reaction between these molecules. In inorganic molecules के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी, due to high temperature। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगी, रिएक्शन between inorganic substances। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बीच में क्या होगी, रिएक्शन। जब रिएक्शन होगी इनके बीच में, अगर मैं फिर से इस समंदर को यहाँ पे बनाऊं, इस ओशन को यहाँ पे बनाऊं, आप समझ लो ओशन, ठीक है ना? अब ये समझ लो आप यहाँ पे वाटर है, ठीक है ना बेटा? मैं ये चीजें क्रिएट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो क्या होगी, जब रिएक्शन होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, व्हाट हैपन,
दीज वर कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये किन में कन्वर्ट कर दिए गए? सिंपल। अभी भी ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग वाली नहीं है। लिविंग तो तब बनेगी ना जब सेल कंप्लीट बनेगी। अब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। किन में? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। अब क्या क्या बना इनसे? हमारे पास CH4 भी है, वाटर भी है, इजंट? तो हमने बोला क्या बन सकता है यहाँ पे? यहाँ पे बने शुगर। क्या बन गया? शुगर बन गया यहाँ पे, सिंपल। ठीक है ना बेटा? और क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे बन गए अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो तो था, अमाइनो एसिड्स भी बनने के चांस है रिएक्शन की वजह से। कार्बन भी तो था। यहाँ पे बन गए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बन गए? यहाँ हम बोलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस बने थे, फिर वो कंबाइन हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स भी बन गए। ठीक है ना? यहाँ पे बन गए हमें फैटी एसिड्स। क्या बन गए बेटा? फैटी एसिड्स। तो ये चीजें जो है यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगी, एंड वी कॉल दीज वन एज अ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना बेटा? उसके बाद क्या हो गया कि इसी में हो रहा है, तो मैं तो नेक्स्ट स्टेप बना रहा हूँ। हो तो ये ओशन में ही रहा है ना, ओशन में ही हो रहा है ना ये चीजें। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाउ दीज सब्सटेंसेस दे शो फर्दर पॉलीमराइजेशन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। इनने क्या दिखाई? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स the sugars combine together and they have formed the polysaccharides. Amino acids combine together, they have formed the proteins. Nucleotides combine together, they have formed the RNA. Isn't it? And fatty acids combine together, they have formed the lipids. तो ये चीजें होगी, ऐसी चीजें हमारे पास होगी। तो हमने बोला यहाँ पे क्या होगी? फर्दर हमने बोला यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कौन सी होगी? पॉलीमराइजेशन होगी। और पॉलीमराइजेशन से क्या हो गया? इसी समंदर के अंदर, जिस समंदर का हार्ड टेम्परेचर है, इसके अंदर क्या हो गया? देयर वाज द पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन में क्या हो गया? हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बन गए। पॉलीसैकेराइड्स फ्रॉम शुगर देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। और हमारे पास क्या बन गए? प्रोटीन्स बन गए फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। और हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से क्या बन गए? RNA बन गया ऑलमोस्ट। और हमारे पास क्या बन गया? फैटी एसिड से लिपिड्स बन गए। तो ये चीजें जो है वजूद में आ गई। तो हम इनको बोलते हैं दीज वर द कॉम्प्लेक्स, नॉन लिविंग है ये, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ गई बेटा? ये वजूद में आ गई। कब आ गई? ऑन टू द अर्थ व्हेन देयर वाज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिर एक बार सुनो इन चीजों को। मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ गैसें जो है वो इवॉल्व हो गई। ठीक है ना बेटा? तो यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को। जब गैसेस इवॉल्व होगी तो हमने क्या बोला? रैन की फॉर्म में कहाँ पे सेटल डाउन हो गए? ओशंस में, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर जो है वजूद में आया था। उसके बाद हमने देखा हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे रिएक्शंस होगी, और रिएक्शंस में क्या हो गई? गैसेस जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कंबाइन हो गए, इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो फॉर्म कर ली। उसके बाद फर्दर रिएक्शंस होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म हो गए। ठीक है ना? ठीक है यहां तक? और इसी को कहा था हेल्डेनी ने। हेल्डेनी ने इसे कहा था हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप, या इसको कहते हैं प्री बॉइंट सूप। क्या बोलते हैं? और इट कैन बी कॉल्ड एज प्री बॉइंट सूप। ये किसने कहा था इसको? हॉट डाइल्यूट सूप। इट वॉज कॉल्ड बाय द ओपेरैन। किसने कहा था बेटा? ओपेरैन ने कहा था इस चीज को। ठीक है, करो जल्दी से आप इसको। They were not called by the Operan. It was called by Haldane. Haldane ने इस चीज को कहा। हार्ड डाइल्यूट सूप और प्री बॉइंट सूप इसको कहा था, जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वजूद में आए थे। ठीक है ना? बनाओ इसको जल्दी से, मेक इट क्विकली।
आगे चले फिर, हो गया। चलो आगे चलते, उसके बाद क्या हो गया, चलो इसके बाद मैं दिखा रहा हूं क्या हो गया, ठीक है ना। तो क्या कहा हेल्डेन ने इसको, हार्ड डाइल्यूट सूप, ठीक है ना बेटा। अब हार्ड डाइल्यूट सूप जो हमारे पास है, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। अब लेटर ऑन क्या हो गया सी के इस ओशन के अंदर, लेटर ऑन क्या हो गया, अब मैं यहाँ से एरो दिखा रहा हूँ वापस, ठीक है ना बेटा। अब क्या हो गया यहाँ पे, नाउ देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। अब यही जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट हो गए, उन्होंने कोई ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए, ठीक है ना बेटा। कुछ दीज वर कॉल्ड एज एग्रीगेट्स। तो हमने क्या देखा कि अगर ये हमारे पास ओशन है और ये इसके अंदर क्या है, वाटर है इसके अंदर, और हॉट वाटर है, बहुत ज्यादा गर्म है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसका, तो हमने बोला यही मॉलिक्यूल जो है, यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ये एग्रीगेट होने लगे एंड दे हैव रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। और एग्रीगेट्स में हमने देखा लिपिड जो है बाहर से आ रहा है और बाकी चीजें जो है वो क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है, बाकी चीजें जो है इसके अंदर जा रही है। ऐसे हमने देखा क्या फॉर्मेशन होगी, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वर फॉर्मड हियर, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स की वजह से हमने देखा लिपिड बाहर से आ रहा है, बाकी चीजें जो है वो अंदर रहेगी। सो देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, इनको बोलते हैं एग्रीगेट्स। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स aggregates were formed, क्या बन गए वहां पे, एग्रीगेट्स बन गए। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा स्विच डिफरेंट की ओर करूंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है, हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट है, दैट इज ओपेरेन। ओपेरेन जो है वो लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। देखो ये तो हो रहा है कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, इट इज एज्यूम्ड, इट इज हैपनिंग ऑन टू द अर्थ, isn't it is doing it in a lab? No. Scientists are what, assuming, this Operan and Haldane is assuming that अर्थ के ऊपर ऐसा हुआ होगा, they are assuming this thing. अब इसी के साथ में जब एज्यूम कर रहे थे तो ओपेरेन ने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिए, उनको हार्ड टेम्परेचर दे दिया, उसके बाद उनको क्या किया, बहुत ज्यादा क्या कराया, बहुत ज्यादा उनको डिस्टर्ब कराया, मूवमेंट कराया वाटर के अंदर। उसके बाद देखा उसने कि वहां पे भी बिल्कुल ही एग्रीगेट्स बन गए। उन एग्रीगेट्स को ओपेरेन ने बोला कोसरवेट्स, क्या बोला, और जब कोसरवेट्स बोला तो कोसरवेट किस चीज के बने थे, वो एग्रीगेट जो बना वहां पे लैब के अंदर, वो कोसरवेट्स बने थे कार्बोहाइड्रेट, और वो बने थे किसके, प्रोटीन के, उनके अंदर कोई भी फैट जो प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां पे अंदर थे वो उसने क्या रखे थे, कार्बोहाइड्रेट वाले और प्रोटीन वाले, अमाइनो एसिड्स, यहाँ हम बोलेंगे अमाइनो एसिड्स, यहाँ हम बोलेंगे शुगर कुछ रहा था, वो कंबाइन करा दिया, तो उसने बोला एक एग्रीगेट जो बिल्कुल बन रहा है हाई टेम्परेचर में, और जब मैं एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस इसको कर रहा हूँ, एक्सट्रीम एंट्रोपी इसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप देखोगे अर्थ के ऊपर क्या हुआ होगा उस टाइम 800 डिग्री टेम्परेचर था, तो आप देखो कितनी इंट्रोपी होगी सिस्टम के अंदर, उस टाइम वाटर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई होगी, तो उसकी वजह से क्या बन गए, एग्रीगेट्स बन गए। अब वही एग्रीगेट्स को चेक कर रहा है, कहा किसके अंदर, लैब के अंदर। तो लैब के अंदर जब बना रही है तो एज्यूम कर रही है ऐसा हुआ होगा अर्थ के ऊपर, लेकिन अब साथ ही में ओपेरेन जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एक आप समझ लो बीकर के अंदर रह रहा है और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे रहा है, तो वहां पे देख रहा है आफ्टर हैविंग द व्हाट यू कॉल रैंडम वैगरस व्हाट यू कॉल दिस डिस्टर्बेंस, ही फाइंड आउट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स एंड ही कॉल्ड दोस एग्रीगेट्स एज कोसरवेट्स। क्या बोला उसने उनको, कोसरवेट्स। और कोसरवेट्स के अंदर उसने बोला कि ये बने हैं दो चीज के, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के, इनके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट या फैट जो है लिपिड जो है वो प्रेजेंट नहीं था। एंड उसने फिर बाद में देखा दिस कोसरवेट्स डू नॉट डिवाइड, डिवाइड भी नहीं हो रहे थे। तो अगर हम इसको थोड़ा स्किप करके आगे चलते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट बन रहा है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे हाईलाइट कर रही है। ओपेरेन इन अ लैब, ओपेरेन इन अ लैब also form aggregates known as coservates,
नोन एज कोस्टर वेट्स। उसने भी वही एग्रीगेट्स बनाए और उन एग्रीगेट्स का नाम जो उसने बोला वो क्या बोला, कोस्टर वेट्स। उसके बाद दीज कोस्टर वेट्स were formed of carbohydrate and lipid, sorry, carbohydrate and protein, but do not have lipid, उनमें लिपिड नहीं था। He find it out that coarser weights do not divide, because there was not presence of a lipid, शायद इनमें लिपिड नहीं था इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। ये किसने किया लैब के अंदर, ओपेरैन ने। तो ओपेरैन ने क्या देखा लैब के अंदर, कोर्सर वेट्स बनाए, एग्रीगेट्स बनाए, बिल्कुल ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया। और जब कोर्सर वेट्स बनाए तो उसके बाद उसने बोला क्या, ये कोर्सर वेट्स जो दे आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बट डू नॉट हैव अ लिपिड, लिपिड इनके अंदर नहीं था। तो ये कोर्सर वेट्स उसने बाद में देखा डिवाइड नहीं होते, मे बी इनके अंदर लिपिड नहीं था इसलिए डिवाइड नहीं होते। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट और एक साइंटिस्ट ने भी किया, उसका नाम था सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने इन एग्रीगेट्स को बोला माइक्रोस्फीयर, क्या बोला, माइक्रोस्फीयर। और माइक्रोस्फीयर को वो जो बना था, इट वाज ओनली मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये किसका बना था, लिपिड्स का। और उसने देखा कि लिपिड इज शोइंग बर्डिंग, लिपिड जो है वो बर्ड दिखा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, और वो लास्ट पे सेपरेट हो रहा है। तो इसने बोला कि जो माइक्रोस्फीयर है वो क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो दो चीजें देखो, हमने क्या देखा, पहले हमने देखा ओपेरैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो एग्रीगेट बनाया उसको उसने बोला कोर्सर वेट। लेकिन कोर्सर वेट जब देखा बना किसका था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, और ये डिवाइड नहीं करता था क्योंकि इसके अंदर लिपिड नहीं था। फिर यही एक्सपेरिमेंट किया सिडनी फॉक्स ने, उसने जो एग्रीगेट्स बनाए, ठीक है ना, दैट ही कॉल्ड एज माइक्रोस्फीयर। और माइक्रोस्फीयर जो है वो बर्डिंग दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, उसको बर्ड बनता था बाहर से, और बर्ड जो है वो क्या हो रहा था, सेपरेट हो रहा था। तो उससे उसे पता चला कि जो माइक्रोस्फीयर है वो क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, सो हम ये बोल सकते हैं कि लिपिड की वजह से जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सेल जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, यहाँ हम बोलेंगे स्ट्रक्चर जो एग्रीगेट जो है वो क्या हो रहा था, वो डिवाइड हो रहा था। तो अगर हम आगे जाके और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इसमें और एक पॉइंट भी ऐड कर देंगे। हमारे पास और एक साइंटिस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज सिडनी फॉक्स। Sydney Fox also in a lab form aggregates known as microsphere, isn't it? These microsphere were formed of, what they were formed of? Lipids, and show budding. And show budding. Budding means they bud off and get divided. That means they show division. वो क्या दिखा रहे थे बेटा, डिवीजन दिखा रहे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई एग्रीगेट दिखाऊं, आप समझ लीजिए एग्रीगेट था ये, ठीक है ना बेटा। अभी एग्रीगेट जो था बर्ड ऑफ हो रहा था, क्या हो रहा था, बर्ड ऑफ हो रहा था। उसके बाद ये बर्ड जो है सेपरेट हो रहा था। तो ये किसने देखा, सिडनी फॉक्स ने। कहाँ पे कर रहे बेटा, लैब के अंदर। ये चीजें लैब के अंदर, ये दो चीजें जो आपको लैब के अंदर देखने को मिलेगी। एग्रीगेट फॉर्मेशन हो गया किन के अंदर, ओशंस के अंदर। और वो एग्रीगेट्स का एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, कौन कर रहा है, ओपेरैन इन अ लैब एंड सिडनी फॉक्स इन अ लैब। दो तरह के एग्रीगेट्स, कोर्सर वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। कोर्सर वेट्स बने थे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के, डिवाइड नहीं हो रहे थे, और ये लिपिड का बना था, ये डिवीजन या बडिंग जो है वो दिखा रहा था। ठीक है ना बेटा, आगे चले फिर। ये दो चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अब मैं इसको पहले सम अप करूंगा, ठीक है ना, इसको मैं एक लाइन में सम अप करूंगा, फिर बाद में हम आगे जाएंगे, आगे की स्टोरी क्या थी, ठीक है ना।
यहां तक मैं एग्रीगेट्स तक इसको सम अप करता हूं। पहले क्या करता हूं बेटा, सम अप करता हूं एग्रीगेट्स तक, ताकि आप चीजें भूल ना जाओगे, वो टॉपिक जो है वो हिले ना यहां से, ठीक है ना। वो चीजें हम देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास पहले क्या था, वी हैव अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये थे। कौन कौन सा था मुझे बता जल्दी से। NH3, CH4, CO2 and we have a water. You know about these things. ठीक है बेटा, ये था हमारे पास। और एक किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है बेटा, ये था। और जब हमने देखा तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए, तो हमारे पास क्या क्या आ गए मुझे जल्दी से बताओ। हमारे पास आ गया शुगर आ गया, ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स आए, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, फैटी एसिड्स आ गए, ये है। और इसके लिए आज भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये प्रूव करता है एक एक्सपेरिमेंट, उसको हम बोलते हैं यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। यूरी हम करेंगे बात, यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट खाली इस चीज को प्रूव करता है। किस चीज को, फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए किस में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ये था। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या क्या था जल्दी से बोलो। हमारे पास थे पॉलीसैकेराइड्स, हमारे पास थे प्रोटीन्स, हमारे पास थे लिपिड्स, और हमारे पास क्या था, आरएनए भी था, ठीक है, या डीएनए भी था, ठीक है ना बेटा, ये था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जल्दी से बताओ, उसके बाद इससे फॉर्म हो गए व्हाट, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ, अब इसको मैं आगे ले जा रहा हूं यहाँ पे, एग्रीगेट्स, ये बना, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। और एग्रीगेट्स आप याद रखोगे, इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट्स है हमारे पास। कौन कौन सा, एक है ओपेरैन ने जो दिया था, ओपेरैन ने बताया था उनको कोसर्वेट्स, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और सिडनी फॉक्स ने बोला था उसको माइक्रोसिगर, ठीक है बेटा। तो ये चीजें यहां तक हमने पढ़ी थी ना, यहां तक सम अप कर रहा हूं मैं, इन चीजों को यहां तक पढ़ी थी आप, ठीक है। अब एग्रीगेट्स के बाद क्या हो गया, आफ्टर एग्रीगेट्स देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल, दैट सेल इज कॉल्ड एज ए प्रोटोसेल। क्या बन गई एग्रीगेट्स के बाद, आफ्टर एग्रीगेट्स देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोसेल, एक प्रोटोसेल बन गया। अब आप याद रखो कि प्रोटोसेल की क्या कहानी है। प्रोटोसेल एक ऐसी सेल है, लिसन टू मी, दिस शो द बडिंग, जो बड़ा आप होती है, लेकिन अभी भी इसमें जो डीएनए आरएनए का कन्वर्जन नहीं है, मतलब आरएनए से डीएनए नहीं बनता है, या डीएनए से आरएनए नहीं बनते, कन्वर्जन नहीं है अभी, देयर इज नो कन्वर्जन। आप बोलोगे सर क्यों आरएनए क्यों है, क्योंकि आरएनए की एंजाइमेटिक एक्शन भी है, आरएनए कैन बी कन्वर्ट इनटू डीएनए, isn't it? And आरएनए की क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्शन भी होती है, आरएनए से एंजाइम हमारे पास होता है, ठीक है ना बेटा। तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटोसेल जो बनी, प्रोटोसेल में अभी डीएनए और आरएनए का कन्वर्जन नहीं था, या आरएनए डीएनए कन्वर्जन नहीं था। इसका मतलब बाकी चीजें थी इसके अंदर, क्योंकि अभी मेटाबॉलिज्म होने वाला था आगे, अब तो आगे रिएक्शन करना नहीं थी, मोर कम्प्लेक्स को बनाना था। तो हम ये बोलेंगे अभी जो सेल बन गई दैट वाज द प्रोटोसेल। अब प्रोटोसेल में सेंडी फॉक्स की रिगार्डिंग माइक्रोस्फीयर हम बोल सकते कि बडिंग हो रही थी, लेकिन अभी जो डीएनए या आरएनए का जो कन्वर्जन है वो नहीं हो रहा था। उसके बाद प्रोटोसेल के अंदर क्या हो गया, आफ्टर दैट इन ए प्रोटोसेल देयर वाज द, हम बोलेंगे देयर वाज द आरएनए डीएनए कन्वर्जन। क्या था, कन्वर्जन हो गया, आरएनए डीएनए, आरएनए से डीएनए बनने लगा, या डीएनए से बाकी आरएनए बनने लगे। अब आरएनए डीएनए कन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, when there was RNA DNA conversion, then there was the first prokaryotic cell formed. First prokaryotic cell जो है वो क्या होगी, वजूद में। So there was the first prokaryotic cell जो है वो वजूद में हो गई, कब,
कब बेटा? जब आरएनए डीएनए का क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। ठीक है बेटा? इसका मतलब प्रोटोसेल क्या कर रही थी? प्रोटोसेल कर रही थी रिप्रोडक्शन। क्या कर रही थी? ठीक है ना बेटा? तो हम ये बोल रही थी कि प्रोटोसेल जो है इट वाज परफॉर्मिंग ओनली द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कर रही थी, और रिप्रोडक्शन किसके थ्रू कर रही थी? बडिंग के थ्रू। दैट्स व्हाई बडिंग इज द व्हाट? ये रिप्रोडक्शन जो है ना मोस्ट सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन है, बडिंग, और मोस्ट प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है बेटा? आगे चलते फिर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल वजूद में आ गई। अब जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल वजूद में आ गई, दे वर कीमोहेटेरोट्रॉप्स। व्हाट वर दे? कीमोहेटेरोट्रॉप्स। व्हाट इज मीन्ड बाय कीमोहेटेरोट्रॉप्स? इसका मतलब जो समंदर के अंदर बाकी केमिकल्स भर रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर, वो उसी के अंदर वो क्या करते थे? वो उसको क्या लेते थे? अपने अंदर लेते थे और उसी का इस्तेमाल करते थे। जैसे आप समझ लो, मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्रामिकली बताऊं, इस चीज को अगर मैं डायग्रामिकली आपको अंडरस्टैंड कराऊं, तो आप समझ लो ये हमारे पास ओशन है। ठीक है बेटा? अब ओशन के अंदर आप समझ लो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गई फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। अब समझ लो ये यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर था यहाँ पे। ठीक है ना बेटा? भर रहा था ऑर्गेनिक मैटर। ये इस ऑर्गेनिक मैटर को अंदर लेते थे और इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है इस्तेमाल करते थे, अंदर ब्रेक डाउन करते, एनर्जी निकालते थे, और इनका साइज जो है बढ़ रहा था। जब अंदर ले रहे थे इसका साइज बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो हम ये बोलेंगे फर्स्ट जो थे वो कीमोहेटेरोट्रॉप्स थे। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये थोड़ा कम हुआ होगा, इसकी क्वांटिटी, इसको बनने में बहुत टाइम लगता था ना। अब इसकी जो क्वांटिटी होगी कम हुई होगी। उसके बाद जो वजूद में हमारे पास आ गए नए ऑर्गेनिजम्स, वो भी तो प्रोकैरियोट की थे, और वो थे क्या थे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। व्हाट वर दे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। वो कीमो ऑटोट्रॉप्स थे। दैट मींस वो इससे क्या कर रहे थे? वो इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करते थे। इसका मतलब वो कुछ टाइम तक सर्वाइव करते थे अगर फूड की शॉर्टेज भी होती थी, क्योंकि वो क्या करते थे? केमिकल्स के थ्रू अपने अंदर क्या बनाते थे? एनर्जी बनाते थे। फूड, हम ये बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स थे। वो केमिकल्स का इस्तेमाल करके वो अंदर एनर्जी बनाते थे, फूड बनाते थे, और उस फूड का फिर लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते थे अगर जो बाहर शॉर्टेज हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी थोड़ा क्या हुआ होगा? कम्प्लेक्स हुआ होगा इनके लिए। तो फिर आगे आगे क्या आ गया हमारे पास? वी हैव द वी हैव द फोटो ऑटोट्रॉप्स। हमारे पास वजूद में आ गई फोटो ऑटोट्रॉप्स। दैट नाउ दे हैव यूज्ड द लाइट। अब उन्होंने लाइट का इस्तेमाल किया अपने फोटो ऑटोट्रॉप्स। और ये फोटो ऑटोट्रॉप्स थे, वो थे एनऑक्सीजेनिक। क्या थे बेटा? दैट मींस वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते थे एनवायरनमेंट के अंदर। एनऑक्सीजन, इसका मतलब लाइट का इस्तेमाल करते थे, एनर्जी बनाते थे अंदर, फूड बनाते थे अंदर, लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते थे। किसके अंदर? एनवायरनमेंट के। उनको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स हो गए कन्वर्ट, लेकिन ये फोटो ऑटोट्रॉप्स थे ऑक्सीजनिक। क्या थे बेटा? ये ऑक्सीजन रिलीज करते। जैसे हमारे पास एग्जांपल है साइयानोबैक्टीरिया। इसका मतलब पिगमेंट्स फिर डेवलप हो गए, और पिगमेंट्स की वजह से इन्होंने वाटर का इस्तेमाल किया, वाटर की ब्रेक डाउन होगी। ठीक है ना? ऑक्सीजन रिलीज हो गया इनटू द एनवायरनमेंट। तो हम ये बोलेंगे ये फोटो ऑटोट्रॉप्स थे, लेकिन क्या थे? ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन को रिलीज करते थे एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमारे पास जो एग्जांपल बनती है वो बनती है साइयानोबैक्टीरिया। तो हम ये बोलेंगे साइयानोबैक्टीरिया हैज लेड टू द ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ठीक है ना बेटा? बोल सकते हैं। If anybody asks you which organism has led to the oxygen evolution, it is photoautotrophs which were oxygenic, and we can say cyanobacteria is one example. So oxygen gets evolved into the environment. अब जब ऑक्सीजन आया एनवायरनमेंट में, पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मतलब यहाँ पे भी अगर आप रेस्पिरेशन देखोगे, यहाँ पे भी एनारोबिक ही है, होगी कि नहीं होगी? यस। यहाँ पे जाओगे एनारोबिक, यहाँ पे जाओगे एनारोबिक, क्योंकि अभी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो रेस्पिरेशन कौन सी होगी? एनारोबिक। अब ऑक्सीजन आ रहा है, बात सुनो मेरी। नाउ वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास वजूद में आ गई यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना बेटा? अब जब यूकैरियोटिक सेल वजूद में आ गई तो रेस्पिरेशन कौन सी बन गई? मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम देखिए ऑक्सीजन जो है इवॉल्व हो गया इनटू द एनवायरनमेंट। तो दो चीजें यहाँ पे होगी, देखो बेटा, एक रेस्पिरेशन स्विच कर गई फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी बात,
अब ऑक्सीजन जब आ गया एनवायरनमेंट के अंदर, अब ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, अब एनवायरनमेंट बनेगा ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट, ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट। इट वाज फर्स्ट वन रिड्यूस्ड, नाउ इट इज एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, ये बनेगा। और तीसरी बात, अब लाइट माइग्रेट करेगी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वाटर टू द लैंड, क्योंकि अब ऑक्सीजन आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अब अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जो लाइफ है वो मूव करेगी फ्रॉम वाटर टू द लैंड। इस तरह हमारे पास जो है फर्स्ट सेल जो बनी होगी वो प्रोटोसेल है, उसके अंदर खाली रिप्रोडक्शन है। उसके बाद आरएनए डीएनए कन्वर्जन हो गया, इसका मतलब अब राइबोसोम्स बनने लगे, अब प्रोटीन्स बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, अब मेटाबॉलिज्म शुरू होगा सेल के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल वो कीमो हेटेरोट्रॉप था, एनारोबिक था। उसके बाद फूड खत्म हुआ होगा ऑर्गेनिक मैटर समंदर के अंदर, ओशन के अंदर। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स वजूद में आ गए, वो इन केमिकल्स को लेते थे अंदर, लेकिन इससे फूड भी बनाते थे। ठीक है ना। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप्स, वो क्या करते, लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते थे, एनर्जी बनाते थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं डालते थे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप्स वो ऑक्सीजनिक आ गए। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आ गया, वो इसकी एग्जांपल है, फोटो ऑटोट्रॉप्स ऑक्सीजनिक की, साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन इवॉल्व किया। अब एनवायरनमेंट ऑक्सीडेटिव टाइप बन गया, बिफोर दैट वाज रिड्यूसिव टाइप। अब ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो गया, तो हमने बोला यूके अब रेस्पिरेशन स्विच कर गई फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक, और साथ ही में लाइफ भी जो है वो माइग्रेट कर गई फ्रॉम वाटर टू द लैंड। ठीक है। सो दिस वाज द ब्रीफ आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ द सेल।